Hello, this is Anupama Laphe for your subject Business Law, and today we are going to discuss about condition and warranties. Under sale of goods, condition and warranties have its prime importance. So be careful while when I am going to discuss with you what is condition and what is warranty. In today's lecture, I want to discuss with you in mixed language, that is in Hindi and in English, because it is very important that you should understand what is the condition and what is warranty. So let us start with the definition of condition and definition of warranty. The definition of condition is given under section 12 and subsection 2, but section 12 and subsection 1 also defines the condition and warranties, but it gives the general definition of condition and warranty, but section 12 subsection 2 gives a specific definition of the term condition. So now let us start with the definition of condition. Section 12 subsection 2 states that a condition is a stipulation. What is condition? It is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to reject the goods and treat the contract as repudiated. What is stipulation? Stipulation means demand of the contract. जैसे कि देखो, हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमारी उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है. कंडीशंस यानी हम लोग बताते हैं ये अगर होगा तो हमें वो गुड्स चाहिए, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो वो गुड्स हमें नहीं चाहिए. तो वो जो हमें चाहिए ही है, हम लोग ये जब बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कंडीशन. दैट मीन्स स्टिपुलेशन जो हमने बताया हुआ है, इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो हमने बताया हुआ है वो क्या है? मस्ट है. किसके लिए मस्ट है? द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है वो मेन पर्पस के लिए वो क्या है? इसेंशियल है. अगर वो नहीं होगा तो देखो of the contract, the breach of which gives rise to reject the goods and treat the contract as repudiated. यानी आपको क्या मिलता है अगर वो प्रेजेंट नहीं रहा? दैट मीन्स ब्रीच, द ब्रीच ऑफ विच, ब्रीच यानी जिसे तोड़ दिया गया है. मैंने कहा है कि ये मुझे होना ही है, लेकिन सेलर अगर उसे तोड़ता है, वो फुलफिल नहीं करता है कंडीशन को, तो विच गिव्स राइज टू रिजेक्ट द गुड्स. उसने किसके लिए हमें ये दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है? टू रिजेक्ट द गुड्स, यानी मैं वो गुड्स को क्या कर सकती हूँ? रिजेक्ट कर सकती हूँ. एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझती हूँ? कैंसल. दैट मीन्स डिनाई. क्या करना है मुझे? इसे डिनाई करना है उस कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, समझ में आया? तो क्या है कंडीशन? कंडीशन ऐसा एक इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कौन सा? सेल ऑफ गुड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो होना ही है. अगर वो नहीं है, उसे तोड़ दिया जाता है सेलर की तरफ से, तो बायर को राइट मिलता है. क्या राइट मिलता है? टू रिजेक्ट द गुड्स, यानी गुड्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा. और दूसरा क्या है? टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को भी वो क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है. ठीक है. देन नाउ लेट अस डिस्कस the term warranty. What is warranty? That is stated under section 12 and subsection 3. A warranty is a stipulation. It is also a stipulation. But what type of stipulation it is? It is a collateral stipulation. But in case of condition, it is a essential stipulation. That is the main difference between the condition and warranty. तो क्या है stipulation? Collateral. Collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to. देखिए, breach of which gives rise to, दोनों के यहाँ पे भी क्या है? breach दिया हुआ है. लेकिन जब ये breach होता है तो किसके लिए यहाँ पे इसे राइट मिलता है? claim for damages. यहाँ पे किसके लिए आपको राइट मिलता था? reject the goods. But now in case of breach of warranty, the buyer get only right to claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी नहीं कर सकता है और गुड्स को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है. तो क्या देखा हमने? मेन डिफरेंस क्या है?
कंडीशन क्या है, जिसको अगर आपने ब्रीच किया हुआ है तो आपको कौन सा हक मिलता है, आपको यानी बायर को कौन सा हक मिलता है, टू रिजेक्ट द गुड्स, यानी आप गुड्स को क्या कर दोगे, टोटली रिजेक्ट करोगे और आप वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे। आपके अगेंस्ट में कोई भी केस सेलर की तरफ से फाइल नहीं होगी, आप फ्री हो फॉर एक्सेप्टिंग द गुड्स और रिजेक्टिंग द गुड्स, ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो। लेकिन वारंटी क्या है, वारंटी कोलैटरल स्टिपुलेशन है। कोलैटरल यानी क्या होता है, मेन पर्पस से जुड़ा हुआ, ठीक है, इसेंशियल नहीं है, वो उसके साथ आया हुआ है। अगर वो आया हुआ जो है उसके साथ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बायर को कौन सा राइट मिलता है, बायर को सिर्फ एक ही राइट मिलता है, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। वो ना तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसी कंडीशन में कैसा राइट मिलता है और ब्रीच ऑफ वारंटी में किस तरह का राइट मिलता है। चलो आपका एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे एसी। हम लोगों ने क्या परचेस किया हुआ है, एसी। एसी क्यों परचेस किया जाता है मालूम है आपको, एक ही कारण है ना, ठंडी हवा चाहिए आपको। तो कूलिंग, ये क्या है उसकी कंडीशन, कूलिंग क्या होना चाहिए, मस्ट है। अगर कूलिंग उसमें नहीं हो रही है तो उसे क्या समझा जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन। आपने यहाँ पे कौन सी ब्रीच किया है, कंडीशन को। वारंटी है क्या, नहीं। वारंटी क्या हो सकती है, वारंटी ये हो सकती है कि जैसे कि 2 इयर्स की वारंटी आपको प्रोवाइड की गई हुई है जिसने आपको एसी बेचा हुआ है, तो वो आपको ये कहता है कि अगर उसके कोई पार्ट्स में डैमेजेस होते हैं या अगर वो कुछ यानी उसमें कुछ बिगाड़ हो जाता है, तो पार्ट डिफेक्टिव हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, वो रिपेयर करके मिलेगा या तो उसे चेंज करके मिलेगा। पर्टिकुलरली वो पार्ट को, पूरे के पूरे गुड्स को नहीं। समझ में आया है तो समझ लीजिए, मैंने एसी परचेस किया हुआ है और उसमें से जो पानी है वो एसी से टपक रहा है, उसके लिए एक आउटसोर्स दिया रहता है, जो एक पाइप जुड़ा हुआ है, ट्यूब जुड़ी हुई है, उससे वो आपके एक्सटीरियर से जुड़ा हुआ है और एक्सटीरियर में आपका क्या है, उसका फ्लो, जो वाटर का फ्लो है वो उससे निकल जाता है। जो भी पानी थोड़ा बहुत एसी से जो जाता है वो किससे निकलता है, बाहर, आपके घर के बाहर जो आपने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है एसी से जुड़ा हुआ, उसके जो पाइप जुड़ा है उसके थ्रू वो पानी जाता है। लेकिन वो पानी इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट ट्यूब, अगर वो एसी से टपक रहा है तो दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट ब्रीच ऑफ कंडीशन। समझ में आया है? तो ऐसे इसमें आप उस एसी जिससे आपने परचेस किया है उससे ये कहोगे कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको वो जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है आपके इसमें उसे रिपेयर करके देगा या तो टोटली वो पर्टिकुलर पार्ट को बदल के देगा। लेकिन यू डू नॉट हैव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? Okay, now let us see when breach of condition is taken as breach of warranty. अब मैंने तो आपको कहा है कि कंडीशन क्या होती है, essential stipulation. Essential stipulation है और अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीच भी हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन अब ये ब्रीच ऑफ कंडीशन ये क्या समझी जा रही है, इज टेकन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। इसे समझा जा रहा है कि ये कंडीशन का ब्रीच नहीं है, ये किसका ब्रीच है, वारंटी का। तो ये कब समझा जाता है, वॉलेंटरी वेवर। वॉलेंटरी वेवर, कंडीशन को वारंटी ट्रेड करना, ये किसका राइट हो सकता है, सेलर का? बिल्कुल भी नहीं। ये राइट किसको दिया गया है, बायर को। बायर अगर समझ रहा है, बायर अगर मानता है कि नहीं ठीक है कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है जिसने मुझे राइट दिया है टू रिजेक्ट द गुड्स और टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, डिनाई द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मुझे राइट दिया गया है वो राइट मैं वेव करता हूँ और उसके बदले में जो आपके इसमें जो फॉल्ट है वो अगर मुझे रिपेयर करके मिल रहा है तो भी मुझे चलेगा। क्या है, लेकिन वो कंडीशन है। लेकिन समझ लीजिए आपको एक चीज बहुत पसंद आ गई है, आपने समझ लीजिए जैसे कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो परचेस की है, आपका उसका कलर, उसका अपीयरेंस आपको बहुत पसंद आ गया है। अगर वैसी कोई चीज जो आपने परचेस की है वो दूसरी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये क्या है, कंडीशन। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैंने ये पार्ट इसका चेंज करके दिया तो आपको जिस स्टेट में आपका ये चाहिए, गुड्स चाहिए, वो स्टेट में मिल जाएगा। तो
तो आप उसके लिए रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, वॉलेंटरीली आपने उसे वेव किया है कंडीशन को, नहीं तो आपको दूसरा ये मिल जाता था। आपको क्या मिलता था, अगर आपके पास वो उस प्रकार का मॉडल नहीं है तो मुझे वो परचेस नहीं करना है, मैं आपके गुड्स को भी रिजेक्ट कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आप खुद ही क्या बोल रहे हैं, ठीक है मैं इसके लिए उस कंडीशन को अब क्या कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ एज ए वारंटी। उसे क्या कहा जाता है, वॉलेंटरी वेवर। Is that clear? Okay. Second one is compulsory treatment of condition as a warranty. आप क्या कर रहे हो, कंपल्सरीली ट्रीट किया जा रहा है कंडीशन को वारंटी। ये कब होता है, हो सकता है कि ऐसे कंपल्सरीली आपको ट्रीट करना पड़े, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जब आपने गुड्स को परचेस किया है थ्रू सैंपल। समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सैंपल के थ्रू आपने गुड्स को परचेस किया हुआ है और जब आपके हाथ में वो गुड्स आते हैं तो यू फाइंड दैट द गुड्स आर नॉट मैचिंग टू द सैंपल, यानी वो किसी भी तरह से मैच नहीं हो रहे किसके साथ, जो आपको सैंपल प्रोवाइड किया गया था उसके साथ। लेकिन समझ लीजिए कि आपने कुछ ज़्यादा इसमें वो आर्टिकल्स मंगवाए हैं, समझ लीजिए आपने कुछ 100 आर्टिकल्स मंगवाए थे आफ्टर गोइंग थ्रू द सैंपल, लेकिन अभी आपको क्या दिखा है, वो सैंपल के साथ सूट नहीं कर रहे। आपने क्या किया मालूम है, उसमें से 10 बेच दिए, उसमें से 2 खुद के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि अगर आपको रिजेक्ट करना था तो बिफोर गोइंग फॉर फर्दर प्रोसेस आपने उसे क्या किया है, आपने उसको सेल भी कर दिया, आपने उसमें से 2 आर्टिकल्स को कंज्यूम भी कर लिया। तो अभी आपने खुद ने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट कर दिया है। तो ऐसे इसमें अभी आपके लिए कंपल्शन हो जाता है कि जो कंडीशन थी उसे अभी आपने क्या ट्रीट करना है, वारंटी। अगर आपने उसको यूज नहीं किया होता, आपने उसे सेल नहीं किया हुआ होता और तुरंत आपने उस सेलर को बता दिया रहता कि ये सैंपल के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो आपको पूरा का पूरा राइट मिलता कि टू रिजेक्ट द गुड्स। लेकिन इस केस में आपने क्या किया है, उसे सेल भी किया है, उसमें से कुछ गुड्स को आपने कंज्यूम भी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कंपल्सरी ट्रीटमेंट हो रही है। किसकी, कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी। तो ये 2 सिचुएशंस रहते हैं जहाँ पे व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टेकन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर हो गया है। वॉलेंटरी वेवर यानी क्या होता है, वॉलेंटरीली बायर कह रहा है कि मैं कंडीशन को वॉलेंटरी ट्रीट करता हूँ, और कंपल्सरी में हमने क्या देखा है कि वहां पे उसने कुछ ऐसे ऐड किया हुआ है जिसके वजह से ही लूजेस हिज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, इसलिए वो कंडीशन को भी क्या समझा जा रहा है, वारंटी। ठीक है, चलो अभी हम लोग दूसरा भी देखते हैं कि जैसे हमने अभी तक के हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या देखा है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रहता है, वैसे ये ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, सॉरी ये कंडीशन और वारंटी भी क्या रहती है, इम्प्लाइड भी रह सकती है या एक्सप्रेस भी रह सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मुझे नहीं लगता कि हमने फिर से बताना है, एक्सप्रेस यानी जो बताई गई हुई है, इम्प्लाइड यानी जो समझ ली गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होती है एक्सप्रेस कंडीशन। ठीक है, उसमें एक है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल यानी क्या है, जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहले ही देखा हुआ है। क्या देखा है हमने उसमें कि जैसे ही हम लोग कोई गुड्स को सेल करते हैं तो तुरंत बायर को क्या मिल जाता है, उसका ओनरशिप, दैट मीन्स ओनरशिप इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बायर। तो जब बायर को ये ओनरशिप मिल रही है तो ये कौन दे सकता है बायर को ओनरशिप, जिसके पास खुद की ओनरशिप है वही दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। समझ लीजिए कि मेरे पास इसकी ओनरशिप नहीं है और ये मैंने आपको सेल कर दिया। अब जब मैं ये सेल कर रही हूँ तो मेरे पास खुद के पास ही टाइटल नहीं है, तो मैं आपको ये सेल कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है, ये क्या समझा जा रहा है कि जब मैं आपको सेल कर रही हूँ तो टाइटल किसके पास में है, मेरे पास में है। इसलिए कंडीशंस एज टू टाइटल ये होता है जब कोई भी पर्सन किसी से भी कुछ परचेज करता है तो ये इम्प्लाइड है, उसने समझ लिया है कि उसके पास वो क्या है, उसकी टाइटल है, उसकी ओनरशिप उसके पास है। ठीक है, दूसरा आता है कंडीशंस एज टू डिस्क्रिप्शन। कंडीशंस एज टू डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जैसे कि कोई के प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर ही लिखा हुआ रहता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर, जैसे हम लोग आजकल पैकेजिंग करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बराबर है, अंदर में क्या है वो दिखता नहीं है।
लेकिन जब हम लोग पैकेजिंग में एक फोटो दिखा रहे हैं तो यही समझा जाता है कि अंदर में भी वही होगा। इमेज के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं, जो इमेज शो की हुई है वही अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बाहर शक्कर यानी शुगर का ये दिया हुआ है, इमेजेस किसके है, शुगर के, और मैंने वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है वो पैक है, और सेल गिर दिया आपको सॉल्ट, क्या आप एक्सेप्ट करोगे क्या इसे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्या दिखाया था, डिस्क्रिप्शन था शुगर का, अंदर क्या निकला, सॉल्ट। तो क्या आपकी कंडीशन को फुलफिल किया क्या? नहीं किया। तो जब आप ये कुछ भी परचेस करने के लिए जाते हैं तो क्या आप उसको पूछोगे क्या, भैया ऊपर तो शुगर दिख रही है लेकिन अंदर भी शुगर है या कुछ और है? ऐसा कोई पूछता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पूछता है। शुगर है, शुगर का पैकेट है, मैं लेके आ गई, लेकिन अंदर सॉल्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो आपको पूरा का पूरा राइट क्या मिला है, टू रिजेक्ट द गुड्स एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड क्या आता है, कंडीशन हैज टू सैंपल। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कहा कंपलसरी ट्रीटमेंट, क्या कर रहे हैं, कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहे हो। जैसे कंडीशन हैज टू सैंपल, यानी आप सैंपल के थ्रू कुछ बेच रहे हो, तो ये तो कंडीशन ही है कि जो मेन प्रोडक्ट आप देने वाले हो दैट मस्ट रिजेंबल, दैट मस्ट बी ऑफ दैट क्वालिटी। बराबर है, सैंपल जैसा दिया वैसा ही आपको मिलना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड आया है, मालूम है आपको, जब आप कोई महंगा परफ्यूम यूज करते हो या महंगा परफ्यूम परचेस करने के लिए जाते हैं तो उसके साथ एक छोटी बॉटल आती है। जब वो छोटी बॉटल है वो क्या है, सैंपल। जैसे आप उसे स्प्रे करके देखते हो कि ये परफ्यूम का फ्रेगनेंस जो है मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सैंपल ने उसने बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस वाली आपको दी हुई है, और जब आप मेन जो परफ्यूम है वो परचेस करते हो, घर में जाके देखते हो अरे यार ऐसा तो फ्रेगनेंस है ही नहीं इसका, तो आपको रेट क्या मिल गया है, टू रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका जो सैंपल है वो आपके मेन प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या है जो आपने सैंपल दिया है, सैंपल इसीलिए दिया है कि आप पूरा का पूरा उसी से मैच क्या देने वाले हो, उसको प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, इम्प्लाइड कंडीशंस। ठीक है, दूसरा क्या है, बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड क्या होता है जैसे कि कई इसके क्या रहते हैं, अपने अपने कंडीशंस रहती है, बराबर है, अकॉर्डिंगली ही वो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। आप उसको फिर से नहीं पूछते हैं कि क्या ये वही होगा या वो वैसा प्रोडक्ट नहीं होगा। कुछ हरदम हम लोग जैसे देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैंने जो परचेस किया है वो किसके साथ मैच होना चाहिए, यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो दिया हुआ है इसमें है कि क्या एक क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। देखिए, एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन टू फिटनेस, क्वालिटी ऑफ फिटनेस क्या होता है, वो क्वालिटी ऑफ फिटनेस, यानी ही जिस पर्पस के लिए मैं उसे परचेस करना चाहती हूँ वो उसके लिए फिट हो। बराबर है, जैसे कि एक हो सकता है कि उसके मल्टीपल यूजेस हो, कोई हो सकता है कि उसका सिंगल यूज हो, लेकिन जब मैं उसको पर्टिकुलरली बताती हूँ कि क्या है, मैं ये पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना चाहती हूँ, और जब मैं उसको बताती हूँ कि मेरा ये स्पेसिफिकेशन है, तो उसने मुझे वही प्रोडक्ट देना चाहिए विच सूट्स, विच फिट्स टू माय रिक्वायरमेंट। बराबर है, जब मैं उनको कहती हूँ कि पर्टिकुलरली मुझे वो उसी के लिए परचेस करना है, तो पर्टिकुलरली वो उसी के लिए परचेस, यानी वो मेरी कंडीशंस को या मेरी डिमांड को उसने फुलफिल करना चाहिए। दूसरा है डेंजरस गुड्स। डेंजरस गुड्स क्या होते हैं, जिसके वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, जिसका कंजम्पशन करने के बाद आपके साथ कोई हादसा या एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे अगर कोई गुड्स है तो उसके बारे में जो सेलर है उसको पहले ही बायर को बता देना जरूरी है। अगर ये प्रोडक्ट को आप ऐसा यूज करोगे तो ये एक्सीडेंट हो सकता है या इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप चूहे मारने के लिए वो कुछ टैबलेट्स लाते हैं या कुछ उसे कहते हैं कि कुछ केक लाते हैं, तो भले ही आपको मालूम है कि वो आपने कंज्यूम नहीं करना है, फिर भी जब वो सेल किया जाता है तो उसके ऊपर लिखा भी जाता है कि उसे बच्चों से दूर रखिए, खाने के लिए नहीं है।
ये हमारे खाने के लिए नहीं है, ये किसके लिए, चूहों को मारने के लिए है। तो ऐसे जब डेंजरस गुड्स रहते हैं तो उसके लिए भी बता देना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक है, थैंक यू।